God is good. परमेश्वर भला है. He's been good in our travels. परमेश्वर हमारे यात्रा में हमारे साथ रहे. And He has protected us and He has brought us back. And so nice to see you all once again. और परमेश्वर ने हमें संभाला और हमें आनंद है वापस आकर आप सबसे मिलने का. So today we want to learn आज हम सीखेंगे from manna to Messiah, the bread that bleeds. और आज जिस बारे में हम सीखेंगे वो है मन्ना से मसीहा तक और ऐसी रोटी जिस पे रक्त बहता है. So Jesus himself claimed to be the Messiah. प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की कि वो स्वयं मसीहा है. And the other wonderful claim that Jesus made और एक और सुंदर घोषणा जो प्रभु यीशु मसीह ने की थी is the bread of life, that He is the bread of life. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो जीवन की रोटी है. So in the claim of Jesus as the bread of life, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने ये घोषणा की कि वो जीवन की रोटी है and the provider of eternal life, और वो अनंत जीवन देने वाले हैं, we are taken back to thousands of years ago. तो हम पिछले 1000 वर्षों के तरफ अगर जाएं तो We are reminded of the manna that God provided to the people of Israel in the desert. तो हमको याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर ने लोगों को जो बयाबान में थे, जंगल में थे, उनको मन्ना से तृप्त किया था. So as we reflect today on Jesus from manna to the Messiah and His claim of being the bread of life, as well as the one by whose blood we receive eternal life. और जैसे आज हमें याद दिलाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है, जीवन की रोटी है और अनंत जीवन है. This whole story is revealed to us by Apostle John. और ये पूरी कहानी हमारे ऊपर प्रकाशन हमको देती है यूहन्ना के द्वारा. In John chapter 6 verses 35 to 58. और जो आज हमारा ध्यान और मनन चिंतन का जो हिस्सा है वो पाया जाता है यूहन्ना 6 में 35 से 58 आयत तक. Actually, the whole chapter 6 of the book of John और यदि आप पूरा अध्याय देखें यूहन्ना 6 का is about this theme of manna, Messiah, the bread of life, and eternal life. और इस पूरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को जीवन की रोटी, अनंत जीवन, मसीहा और मन्ना के साथ जोड़ा गया है. But we shall read only from verses 35 to 58. Anybody, if you can help reading these different slides. There are 3 slides on in here. पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे केवल यूहन्ना 6 35 से 58 आयत तक. May the Lord bless the reading and hearing of His powerful word. परमेश्वर अपने महान वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे. Now this whole chapter 6 in the Gospel according to John ये पूरा अध्याय 6 जो कि यूहन्ना रचित समाचार में पाया जाता है is about the bread, and particularly the bread of life. ये रोटी के विषय में है और खास तौर से जीवन की रोटी के विषय में. Bread is something that is found in all cultures, everywhere, in one form or the other. और रोटी जो है हर एक संस्कृति में किसी ना किसी रूप में पाई जाती है. So we see this here in John chapter 6 also. Jesus takes something that has been found in all cultures. और इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ये साधारण रोटी के विषय में शिक्षा दी जो हर एक संस्कृति में पाई जाती है. And Jesus has taken something that is easily available to everyone in all cultures. और प्रभु यीशु मसीह ने इस साधारण चीज को जो हर एक जगह पाई जाती है, हर एक संस्कृति में पाई जाती है, उसको लिया है. And by taking that bread, और इस रोटी को लेने के द्वारा He also is trying to teach us some deeper meaning of the bread of life.
और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको और ज्यादा गहराई से रोटी के विषय में, हमको जो जीवन की रोटी है उसके विषय में बताना चाहते हैं. So now this is one of the proofs also, because bread is found in all cultures, और क्योंकि ये एक सबूत है, ये सारी सब संस्कृति में रोटी पाई that जाती we है. all come from the same parents, we all come from the same village, we all have this bread as part of our food around the world. और पूरी दुनिया भर में हम कहीं भी देखें, रोटी हमारे जीवन का हिस्सा है. So we see that Jesus Christ also fed 5,000 people. He fed them bread. और हम वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को रोटी से तृप्त किया था. And then he takes this bread, the ordinary thing, और प्रभु यीशु मसीह इस रोटी को जो एक साधारण वस्तु है लेते हैं, and the ordinary object of everyone's life and culture, और हर एक संस्कृति का और हर एक के जीवन का एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है रोटी, and then tries to teach us deeper theological meaning of the bread of life through that bread that he fed 5,000 people. और इसी रोटी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको और गहराई से रोटी के विषय में बताना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को तृप्त किया था, जिसके द्वारा He is not denying the importance of bread in our lives or our hunger for bread. और प्रभु यीशु मसीह किसी भी प्रकार से हमारी भूख को जो रोटी की होती है उसको किसी प्रकार से नकार नहीं रहे. Because he did not do this just for being a miracle worker. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये जो कार्य किया, ये केवल एक आश्चर्य कर्म करने वाले के रूप में ही नहीं किया. He was not showing off that he could feed 5,000 people. और प्रभु यीशु मसीह को यहाँ दिखावा नहीं कर रहे थे कि वो देखो 5,000 लोगों को खिला सकते हैं. But he really had compassion on people when he saw thousands of people following him and listening to his teachings. परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है वो पूरी तरह से तरस से और प्यार से भरे हुए थे जब वो अपनी शिक्षाओं को इन लोगों को दे रहे थे जो उनके चारों तरफ थे. But you know what happened after people had been fed? Thousands of people have been fed and they were satisfied. लेकिन आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? जब ये हजारों लोगों को रोटी मिली, वो तृप्त किए गए, आपको मालूम है क्या हुआ? Chapter 6 and verse 14 says, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 14 आयत में ये लिखा है, after the people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, surely this is the prophet who is come into the world. यूहन्ना 6:14 में लिखा, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वो लोग देखकर कहने लगे, ये भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है. And verse 15 says, Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. और 15 आयत में लिखा, यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया. So he withdrew from there. He disappeared because he didn't want to be a king, because they wanted a king who could feed them freely bread every day. और ये प्रभु यीशु मसीह वहां से चुपचाप से निकल गए क्योंकि ये लोग उसको राजा, यीशु को राजा बनाना चाहते थे ताकि वो रोज उसको रोटी खिलाएं. So next day, इसलिए दूसरे दिन we see that people were seeking Jesus again. हम देखते हैं कि लोग जो है यीशु को फिर से ढूंढ रहे हैं. And what were they seeking him for? वो यीशु को क्यों ढूंढ रहे हैं? They were seeking him for more free lunches. वो यीशु को ढूंढ रहे थे और मुफ्त खाने के लिए. There is nothing wrong with that. इसमें कोई बुराई भी नहीं है. If people are hungry, यदि लोग भूखे हैं, Jesus recognizes that need. यीशु उस जरूरत को पहचानते हैं. Jesus provides them that need. यीशु उनकी जरूरत को पूरा करते हैं. And he knows that people need bread, they need to be fed. और यीशु जानते हैं कि लोगों को रोटी की जरूरत है और उनको खिलाए जाने की भी जरूरत है. Although he said, you're seeking me because you were fed. और यीशु जबकि कहते हैं कि तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम भूखे हो. But he didn't ridicule them and they're seeking him for bread.
लेकिन यीशु ने उन्हें डांटा नहीं कि वो रोटी के लिए उसको ढूंढ रहे हैं। He never undercuts the significance of bread in our lives, the needs, the provisions that we need daily from God. और प्रभु यीशु मसीह ने कभी इस बात को नहीं नकारा कि हमारी जरूरतें क्या है या हमें रोटी की आवश्यकता है। कभी रोटी को उन्होंने अलग नहीं किया। So instead of ridiculing them for seeking Him for more bread, और बजाय उनको डांटने के क्योंकि वो यीशु को और रोटी के लिए ढूंढ रहे हैं, instead of telling them to go away, He doesn't have any more bread. बजाय इसके कि वो लोगों से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास रोटी नहीं, He takes their hunger वो उनकी भूख को लेते हैं and He tries to teach them something deeper. और वो उसके द्वारा उनको और कुछ गहराई से That सिखाना He is चाहते हैं। more than a prophet. वो उनको बताना चाहते हैं कि वो एक भविष्यवक्ता से बढ़कर That है। Jesus is more than a miracle worker. कि यीशु दिखाना चाहते हैं कि वो आश्चर्य कर्म करने वाले से बढ़कर है। That He is capable of more than feeding the 5,000 miraculously. कि वो इस लायक है कि वो 5,000 से और भी ज्यादा लोगों को खिला सकते हैं। Jesus wants them to come out of the bread of physical needs to see Him as the bread of life that He is. और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो एक शारीरिक जो बहुत एक जरूरत है रोटी की, उससे ऊपर उठकर वो यीशु को एक रोटी जीवन की रोटी के रूप में देखें। So now Jesus makes it very clear और इसलिए अब यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट उनसे कहते हैं that He is indeed the bread of life. कि हाँ सचमुच वही जीवन की रोटी है। In chapter 6 and verse 34, और यूहन्ना 6 उसकी 34 आयत में यदि हम देखें, they were asking Him, लोग यीशु से पूछते हैं in verse 34, Sir, they said, give us this bread that you keep talking about always. और यूहन्ना 6:34 में इस प्रकार लिखा है, तब लोगों ने यीशु से कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। And in verse 35, therefore, और इसलिए 35 आयत में लिखा है, then Jesus declared, तब यीशु ने उनसे कहा, I am the bread of life. जीवन की रोटी मैं हूँ, And whoever, he who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। So Jesus is very clearly, without mincing words, without trying to hide anything, says, I am the bread of life. और इसलिए यीशु उनसे बिना बातें बनाए और बिना घुमा के बात किए हुए यीशु जो है स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। So Jesus has healed their sick people. यीशु ने उनके बीमारों को चंगा किया। Jesus has taken care of their physical hunger. प्रभु यीशु मसीह ने उनके बहुत एक शारीरिक भूख को तृप्त किया। Jesus has taught them in parables. यीशु ने उनको दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा दी। And now he thinks the time is appropriate और अब वो सोचते हैं कि ये समय अच्छा है that he will lead them not just to bread, कि अब वो न केवल रोटी की तरफ उनको ले जाएंगे, not just to his signs and wonders, न केवल उन चिन्ह अद्भुत चमत्कारों की but तरफ to ले जाएंगे, his extraordinary claim परंतु जो उसका अभूतपूर्व यीशु का जो घोषणा है that he himself is the bread of life that has Amen. come down from God to the people of God. लेकिन ये कि वो वास्तव में ही जीवन की रोटी है जो परमेश्वर की ओर से उतरी है। So Jesus claims to be the bread of life, and the next claim that he makes, और यीशु घोषणा करते हैं कि वो जीवन की रोटी है, और जो दूसरी घोषणा करते हैं वो ये है that he can provide eternal life. कि वो अनंत जीवन भी दे सकते In verse 40, हैं। और यूहन्ना 6:40 chapter 6 and verse 40, he says, यूहन्ना 6:40 में लिखा है, For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day. क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। Now, this was a very extraordinary claim to make. और ये बहुत ही एक अभूतपूर्व घोषणा थी जो In यीशु fact, ने it की थी। was scandalous for Jesus to make the claim that he is the bread of life
and He alone can provide eternal life. और ये बहुत ही कठिन बात थी जो यीशु ने कही कि वो जीवन की रोटी है और वो अनंत जीवन दे सकते हैं. In fact, the whole chapter in this, the feeding of the 5,000, Jesus' discourse about the bread of life, और ये जो पूरा अध्याय है जिसमें यीशु भोजन प्रदान करते हैं और प्रवचन देते हैं. John, the writer of this chapter, यूहन्ना जो इस पुस्तक के लेखक हैं, he is leading us to this very point that Jesus is making in chapter 6 and verse 35 and verse 40. और यूहन्ना जो है वो हमारे ध्यान को केंद्रित करते हैं 35 आयत में और 40 आयत में यीशु की घोषणा की. They have had manna in the past. उन्होंने मन्ना प्राप्त किया पिछले समय में. They had life. उनके पास जीवन था. But now Jesus is claiming परंतु अब यीशु घोषणा कर रहे हैं that He could give them more life. He could give them abundant life. He could give them eternal life. लेकिन अब यीशु न केवल जीवन की बात कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें और ज्यादा abundant life. And it is not only to the disciples, it is not to the people of Israel, और ये केवल इस्राएली लोगों के लिए नहीं है, but He is extending that to the rest of the world, to you and to me. परंतु इस बात को वो पूरी दुनिया भर में आपके लिए और मेरे लिए भी उसको बोल रहे हैं. And we need to understand from these words of Jesus, और हमको इन शब्दों के द्वारा समझना है, and we need to acknowledge that और इस बात को मानना है. no matter how long we have known Jesus, चाहे हम कितना भी समय से यीशु को जानते आए, no matter how long we have heard about Him or read about Him, और चाहे हम कितने भी समय से उसके बारे में पढ़ते आए हैं, our understanding of Jesus is inadequate. तो हमारा जो यीशु के बारे में जानना है वो कुछ भी नहीं है. And He wants to give us more and more and more of Himself. और प्रभु यीशु मसीह हमें और भी ज्यादा अपने आप को देना चाहते हैं. But as He was doing this, as He was teaching this, और जब यीशु इस बात की शिक्षा दे रहे हैं, the fourth thing that we see, चौथी बात जो हम देखते हैं, that this discourse of Jesus, ये जो प्रवचन यीशु ने दिए, it was interrupted ये एक तरह से बाधा पड़ी इसमें by the religious leaders of His day. जो धार्मिक गुरु थे उन दिनों के. Now, verse 41 says, 41 आयत में लिखा है, at this, that means at this claim of Jesus to be the bread of life, at this claim of Jesus to provide eternal life. इसलिए क्योंकि यीशु ने कहा था कि वो जीवन की रोटी है और वो अनंत जीवन देने वाले हैं. The Jews began to grumble about Him because He said, I am the bread that came from heaven. They said, is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can now He say, I came down from heaven? और यूहन्ना 6:41-42 में लिखा है, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ. और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? So the religious Jews were trying to understand and place Jesus as one of the prophets or this or that or a rabbi or a teacher. और जो धार्मिक गुरु हैं, जो रबी लोग हैं, वो यीशु को एक तरह से केवल एक भविष्यवक्ता के रूप में रखना चाहते हैं. They want to fit Him in what they already know. और यहूदी लोग यीशु को उस जगह रखना चाहते हैं जिसके विषय में वो जानते हैं. The box that they have created in their memory, they want Jesus to fit into that. और जिस याददाश्त में उन्होंने एक बॉक्स बना रखा, वो उसमें यीशु को डालना चाहते हैं. But His claims do not fit in any box that they know of. हालेलुया. लेकिन यीशु की जो घोषणाएं हैं वो किसी भी रीति से किसी बॉक्स में हम सीमित नहीं कर So they सकते. started grumbling, they started murmuring against Him. इसलिए यहूदी लोग यीशु के खिलाफ कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लगे. What does this remind you of? ये आपको क्या याद दिलाता The है? same people who murmured against Moses, they were grumbling against Moses in the wilderness when they were fed manna. ये आपको याद दिलाएगा कि जब परमेश्वर के लोग जब जंगल में थे और परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया था, वो लोग मूसा के प्रति भी कुड़कुड़ा रहे थे. They grumbled, especially it is written, because Jesus claimed to be what
blew their mind. और ऐसा लिखा है कि वचन में कि वो कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे, क्योंकि यीशु ने घोषणा की है और उसको वो देख नहीं पाए। And men and women all throughout the centuries, whenever they grumble, और जब भी पुरुष या स्त्री पूरी शताब्दी में हम देखते आए, जब भी वो कुड़कुड़ाते हैं, we miss the point that Jesus or God is trying to convey to us, my dear friends. तो हम इस बात को भूल जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। God wants us to bring to the fullness of life. परमेश्वर चाहते हैं कि हमें बहुतायत का पूर्णतः जीवन दे। More than anything else, more often we are always like the Jewish religious leaders who are occupied with grumbling and complaining and murmuring against what God is trying to reveal to us. और ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना दिखाई देता है, जिससे हम उस बात को पहचान नहीं पाते जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। But what is most interesting to me लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है is the number 5 point in this chapter. वो पांचवा हिस्सा है, पांचवी बात है जो मैं बताना चाहता हूँ How does Jesus respond to the grumblers? कि यीशु जो है वो किस प्रकार से उत्तर देते हैं कुड़कुड़ाने वालों से। In John chapter 6 and verse 43 to 48, यूहन्ना 6:43 से 48 आयत तक you know, we see Jesus' response to these people. हम देखते हैं यीशु जो उत्तर देते हैं इन लोगों को। Verse 43 says, 43 आयत में लिखा है, Jesus told them, यीशु ने कहा, stop grumbling among yourself. आपस में मत कुड़कुड़ाओ। No one comes to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। So the key word there is among yourself. और जो मुख्य शब्द है आपस में। Stop grumbling among yourself. आपस में मत कुड़कुड़ाओ। One of the oldest problems of us as human beings. और ये बहुत ही पुरानी समस्या है हम मनुष्यों It के। happened in Moses' time thousands of years ago. मूसा के समय में ऐसा हुआ। People were talking and grumbling and complaining about themselves or among themselves. लोग जो हैं आपस में कुड़कुड़ाते हुए दिखाई देते हैं। They don't want to go and face the leader and talk to the leader on his face. वो जाके सीधे से अगुवे के चेहरे पे, अगुवे के सामने बात नहीं करना। And often that is the problem even today in our churches. I have been in a pastoral ministry for more than 30 years, and that is the major problem we see, friends. और मेरे मित्रों, ये एक खास समस्या है जो मैंने अपने पूरे सेवकाई के अभी तक जो मेरे समय रहा उसमें मैंने ये खास एक समस्या देखी है। Jesus knew what they were talking about. यीशु को मालूम था वो क्या बात कर रहे हैं। Jesus categorically tells them, और बड़ी स्पष्ट रीति से यीशु कहते हैं, stop grumbling among yourself. आपस में मत कुड़कुड़ाओ। Rather, I am the one, the Messiah, the bread of life who is in your midst. बल्कि मैं जो मसीहा हूँ और जो जीवन की रोटी हूँ, मैं तो तुम्हारे मध्य में हूँ। So turn your focus on me and on my teachings, इसलिए अपना ध्यान मेरी तरफ केंद्रित करो, मेरी शिक्षाओं पर ध्यान so दो, that we may learn fully and more and in elaborate ways what Jesus is and who Jesus is and what he's trying to teach us. ताकि हम और भी विस्तार पूर्वक ये जान ले कि यीशु है कौन और हमें क्या सिखाना चाहते Jesus हैं। is asking them यीशु उनसे कह रहे हैं to stop grumbling among themselves, कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ, rather than turn toward Jesus, बल्कि अपने आप को फेर लो यीशु की so तरफ, that faithfully we will hear more from him. ताकि विश्वास योग्यता के साथ हम और ज्यादा यीशु से सुने, And our hearts may be opened, और हमारे हृदय खुल and जाएंगे, our minds may be opened हमारे दिमाग भी खुल जाएंगे to what God has done कि क्या परमेश्वर ने हमारे and लिए what किया God can do और क्या परमेश्वर कर सकते हैं in and through Jesus Christ. यीशु मसीह में और यीशु मसीह के द्वारा। You know, one of the old hymns that I love most, आपको मालूम है एक बहुत पुराना एक गाना है जो मैं बहुत पसंद करता हूँ। it is turn your
eyes upon Jesus. कि अपने आंखों को यीशु की तरफ लगाओ, Look full in his wonderful face. पूर्णतः उसके बहुत ही सुंदर चेहरे को देखो। And then it goes on saying, और फिर आगे कहते हैं, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. और ऐसा करने से यीशु की रोशनी में जो संसार की हमारे चारों तरफ बातें हैं वो धीमी पड़ जाएंगी। It's an amazing hymn. ये बहुत ही सुंदर एक गाना है। But most often पर ज्यादातर we think that the things of this earth हम सोचते हैं कि जो पृथ्वी की बातें हैं are only the temptations we face, the problems that we face, the needs that we face. हम सोचते हैं कि ये केवल जो हमारे चारों तरफ है ये केवल परीक्षाएं हैं, हमारी जरूरतें हैं, हमारी परेशानियां हैं। But I think the things of the earth पर मैं सोचता हूँ कि इस पृथ्वी की जो बातें हैं are also the conceptions that we have, the viewpoints that we have about Jesus. ये वो भी बातें हैं जो हम सोचते हैं यीशु के बारे में। They are firmly made in our boxes. We have created these boxes and we try to fix Jesus into one of these boxes. और ऐसा करने के द्वारा हम कुछ सीमाएं बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं और हम चाहते हैं कि हम यीशु को उन सीमाओं के अंदर ही रखें। Jesus is trying to draw a better and a fuller picture of God for us. और प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी सुंदर और बेहतरीन तस्वीर हमारे लिए, एक पूर्णतः तस्वीर हमारे लिए खींच So रहे हैं। instead of looking at that, और उसको देखने के बजाय, instead of turning our eyes upon Jesus, और बजाय इसके कि हम अपनी आंखों को यीशु की ओर we लगाएं, often turn toward each other. तो हम एक दूसरे की तरफ घूमने लगते We हैं। look for this pastor. हम इस पादरी को देखते We look for that preacher. हैं, हम उस प्रचारक को देखते We हैं, are after that prophet. हम उस भविष्यवक्ता के पीछे We are जाते after हैं, that great famous celebrity preacher. और हम उस बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध प्रचारक की तरफ Many of देखते हैं। us are running from one meeting to the other meeting to listen to the men and women of God. और हम इधर से उधर भाग रहे हैं ताकि दूसरे मनुष्यों को सुने। Jesus is asking us to stop grumbling and looking among और ourselves. प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि आपस में हमें एक दूसरे के प्रति देखकर कुड़कुड़ाना नहीं Rather, है। his response to the complainers is that, look at me. और यीशु उन कुड़कुड़ाने वालों के लिए कहते हैं तुम मेरी तरफ I am देखो, in your मैं midst. तुम्हारे मध्य में And हूँ। if you believe in Jesus as the Messiah, और यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे एक मसीहा के and रूप then he में, says, if you eat my flesh, that is the bread of life, और यीशु कहते हैं यदि तुम मेरा मांस खाओ जो कि जीवन की रोटी and है, if you drink from my blood, which I'm going to shed for you on the cross, और यदि तुम मेरे लहू को पियो जो मैं सलीब पर That लिखाऊंगा, you will have eternal life. तो तुम अनंत जीवन पाओगे। So verse 51 says, और 51 आयत में लिखा है, and I am the living bread यीशु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ that came down from heaven. जो स्वर्ग से उतरी है। If anyone eats of this bread, and he will live forever. यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वो सर्वदा जीवित This रहेगा। bread is my flesh, which I will give for the life of the world. और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। So, my dear इसलिए friends, मेरे मित्रों, you have this bread of life, Jesus Christ, right here in front of you. आपके सामने प्रभु यीशु मसीह स्वयं उपस्थित हैं। And he is asking us to believe in him as the Messiah, the promised Messiah. और यीशु चाह रहे हैं कि हम उनके ऊपर विश्वास करें एक मसीहा के रूप में। He is asking us to eat the flesh, that is the body, the body of our Lord Jesus Christ that was broken on the cross for the world. और प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि उनका शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया, पूरी दुनिया के लिए तोड़ा गया, हम उसमें से He's खाएं। asking us to drink the blood spiritually that he shed on the cross for us. और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस लहू को जो आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बहा दिया, That flesh and that blood ये मांस और लहू
is represented in the bread and the wine or the juice that we are going to partake in a moment. और ये जो मांस और लहू है ये एक प्रतीक है जिसमें हम सहभागी होंगे अभी। So may the Lord bless us and help us to prepare our hearts to receive the body and the blood of our Lord Jesus Christ. और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम उसके मांस और लहू के सहभागी होने के लिए अपने आप को तैयार करें।